typing the keyword clicks as well. So here is the option, right? And one more option I can show. There are multiple places from where you can just see this thing. Mm, I guess you can see from here as well. It takes a little time because it fetch a lot of data. That is why taking time. So you can just see from there as well. So the better option is like you can just see the things from this option, service panel option, right? From where you can just see the keywords. There is option of banner report and product showcase report. So from here you can just see the report as well, right? Whenever you're just visiting to client, you want to see which keywords are running, what how many impressions are there, how many clicks are there. Just click there and you can get the option, you can get the keywords and all the report from here, right? You can take the screenshot, you can just send to clients, you can just check by your own. So this is the option. So I've shared three places from where you can see all the details. I don't know whether you have the option of that banner. So that is why I share the few more options from where you can just see the reports properly for the keywords, right? So today, as per discussion with Charan, the today agenda was enrichment, right? How can we enrich the profile? Like in any of the scenarios where client is sharing the problem, like client is sharing the concerns of less inquiry, right? Or some relevant inquiry. So how can we correct the enrichment means what? Enrichment means just correct the things. We have to enrich. Enrich what simply says that we have to correct the things. So you need to just check. Japrit is there. Japrit will guide you step by step. There is a presentation as well. He'll let you know that how many rights you have. How can you do the things from your own end, right? There are multiple rights that EC team have. There are multiple roles you have been provided to make the profile correct, whether it's keyword, whether it's products, product names, additional keyword option is there, right? So what the thing that you need to check from your own end and you can correct the things. So purpose of this session is not like that uh, we are providing the information. We are providing the information by that information you can do the things from your own. This is the purpose of this training. EC team can so EC team what EC team can do from his own end using the housekeeping, right? So Japri will share the screen and he will let you know all the options one by one, right? How can you use these options? How can you just correct the things in your profile? Japri, you can share the screen now. Yep, sure. Japri, So, good morning, everyone. How is everyone? Is my voice audible to you guys? Yes, your voice is audible. Yeah, great. Just 1 second. जगप्रीत एक चीज ये इनिशिएट करना बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सो हाउ डू वी स्टार्ट द एनरिचमेंट ठीक है फॉर द प्रोफाइल ठीक है तो वो रेफरेंस साइट्स एंड द मोर प्रोडक्ट्स हैव मोर विजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो राइट Sure, sure. So the first step would be to find out the reference site via Google. So, उसके बाद ही फिर हम सारे का सारा जो Right, right, sites हैं right, right. So, one minute शुरू करते हैं. मैं slides actually basically मैं scripted pattern follow करूँगा भी नहीं guys. मैं आपको थोड़ा सा ना eased out manner बताऊँगा. I will still refer the slides which I've created, but other than that, there is something which I would like to share. Before we start, I guess English would be comfortable. Everyone is comfortable in English, right? Yes, yes. Right. So we majorly get one concern
Whenever we address the SRV, we are majorly getting the concerns. Like we means CRM is getting the major concerns regarding the profiles, which is less inquiry, maturity, business conversion. However, there is one thing that if we actually review the profile, we will be able to understand that the expectation versus deliverable is very different than each other. That means the thing that we are expecting. Now, we stands for EC team. That means sales team, service team, who is visiting to client. The things which we are expecting, we are also giving the same expectation to the client without knowing the fact that can it be delivered or it cannot be delivered. Or are there some possibilities or there are no possibilities to do anything in it. So before we start, we must understand two things. First thing is when you open the client's profile or when you onboard a client, if you are selling the contract, please ensure that you also review the reference site. Reference site means that what exactly is client doing on the alternate portal. Alternate portal can be anything. That means it's his website, own website, or on India Mart, just dial anywhere. Okay, so just at least review once what exactly they are doing over there. Because when we compare that thing, when we see the difference between updated information with us and updated information on the reference on alternate websites, it is way beyond heavy than us. Just because of one reason, they have multiple or extra products updated over there. But with us, we have only updated like couple of products. Only 10 to 12 products are updated with Trade India, but more than 50 products are updated with India Mart. And then we got to know there is a comparison between both, that I'm getting more and much leads from there. I'm getting the business from there, but there is no conversion. There is no leads even from Trade India. So this actually happens after a half of the year has gone. We got to know about the situation when the client is raising this concern. We do not check it by ourselves. So before connecting with client, before visiting him, before it comes to your NT, whenever you check it, whenever you open the profile, always review couple of things. I will share the screen with you guys. So this will be a random. This will be completely random profile, not related to anybody particular. Okay. So just one second. Okay. Just consider this profile. Are you guys able to see my screen? No, no, your screen is not visible. Yes, sir. Visible. Yes, sir. I can't see, but yes, now visible. Okay, maybe the internet is not that heavy. Just refresh Visibly it visible. once. Visible? Okay, cool. So the company name is Power Switchgear. Just for an example, I will copy this name and I will open a new window on Google. I will simply paste this name. I have not done anything special. I just pasted the company name, Power Switchgear. Once you open that, you will find multiple companies who have been known by this name. India Mart Power Switchgear. Do you see that? This is the reference site of that company. All you have to do is just to validate it. India Mart always post their GST number on the top. You can just validate it by copy pasting the number. It will show as valid. Do you see that? It's a valid and it's the same company, right? So now what you can do is now you can see how many products are there. Okay. And if the content is more richer than us or not, you can at least review over there once about the product updated there and product updated with us. I hope everybody knows the checklist, how to check the product information, how many products are updated on the catalog. Just simply click on the catalog tab and you will be able to see the updated product count. This is 58 products updated. I hope my screen is big enough to see. There are 58 products added in the client profile, right? Other than that, to enrich more or to give it a more view, also search for the featured product. How many featured product has client added?
Okay, in this subjective profile, there is no feature product added, not even a single feature product. Does anybody know what does exactly feature product do? It gives you the double visibility. Double visibility. We must have seen the Amazon and Flipkart. Sometimes when you are scrolling the Amazon and Flipkart, you must see that we are going vertically. But sometimes automatically there is a horizontal line also available with the duplicate product that you must have seen above in the vertical section. But it's coming for the same company name with a different product name and a different angle of image. It gives a double visibility. That is how we suggest the client to always add more feature products, as all the paid clients have access to add feature products. How many feature products can they add? Can anybody answer this question? Is my voice audible to you guys? How many feature products a client can add, a paid client can add? I think sir 100. Okay, Mahavir. Is there anybody else who can confirm this? We have more than 60 people in this chat group, and there is not even a single reply. That's very strange. 100 product add in the feature products. Good. That is true. Client can add 100 feature products as well, up to 100 feature products. Okay. But there is one criteria. Client can add the feature product, but when it's come to add the catalog products, all we got to do is we connect with the client and just say, client want to add the new products. And what we do is we share the images with the CRM people or on SR, just the images only. And what happens in the next situation? The SR got rejected. Either it got rejected or either the CRM people start chasing the client, start chasing the FLS because of one reason, because without the custom field information, being a part of enrichment, custom fields are the major criteria that has to be, documented while adding the product. It's because of one reason. I will give you a very layman example. A person who is non-knowledgeable to this situation will be able to also understand. If I show you a movie poster, if it's a movie poster having the images of hero and heroine, right? But there is no name on the movie, there is no description on the movie. Will you be able to decide that, yeah, I want to see this or not? You will never be able to decide, right? So this happens when you are consistent and you are educating the client to add the products, but you are not guiding what the product specification can help. Product specification can help to grow the searchability of that product, right? Google presents the 360 view, which says it searches for every keyword that is updated on the catalog or anywhere in the product section or anywhere in the content section. The information from everywhere, which improves the ranking, which improves the visibility on the product, right? So this helps the client. Let me show you one single page which helps you to help in the same part, which is, one second, please. You guys will be able to see this on the MTI section, My Trade India portal section, which client already have it. That means whenever client opens the product add product section, they will be able to see this section. That these are the mandate. It's a star field on MTI, My Trade India portal, that allows the client to add this information. Let me show you this product now. चलो बंधु Yes, Jan. Jan, can you please mute yourself? Jan, can you mute yourself, please? चलो साउंड असतो तो हां Jan, are you able to mute yourself? आवाज नसतो म्यूट कर Thank you. Okay. So this is the product page. I hope my screen is visible to you. Let me enlarge it a little bit more. Okay. Once this page is open in front of you, just scroll it down and you will be able to see this line which says
product custom fields, right? These custom fields are mandate section. When you discuss this with the CRM agent or anybody in the CRM team, that why my SR got rejected, why the product is not added, why this product is in deleted section, why it's not approved. This is the only reason. Client have to update these mandate section. These are the star fields. Do you see that? These are the star fields which has to be updated. Minimum order quantity, right? The product price or price range. Go for the price first. If the client is not able to specify the price of that product, it should be price range, but it should be in the limitation range. Like 100 to 125 is it's acceptable, but 100 to 10,000 it's not acceptable. 100 rupees to 10,000 rupees is nowhere an acceptable price range that can be chosen. Once you scroll down, these are the product specifications. It is not a mandate part, but it's absolutely valuable for every product, right? Whenever you mention something about the product that improves its look, how its usage depends, what is the industry that it caters, it helps with this information that is represented over here, right? Apart from that, once you scroll it down, you will be able to see more star fields, supply ability, delivery time frame, how much, what is the exact quantity or approx quantity that client will be able to supply, what is the delivery time frame in which he will be able to deliver that quantity, right? So these are the mandate fields, because whenever you visit Amazon, Flipkart, you must have seen that there are three informations that you always get. What is the product price? How much time it will take to get it delivered? Is there any return policy or not? That means, are you safe on the point or not? What are the product specifications? Always there. So according to them, those are the mandate fields. These are the mandate fields for us. Whenever you talk to the client next time, please do educate them that adding these informations are a mandate part. Sharing these informations are an absolute mandate part, right? Which helps to educate the client that it's going in the right direction. Other than that, in the part of enrichment, if I would say, there is something that I would like to also share with you guys. Ashish was well explaining about the evolution panel. You guys have the evolution panel available with you. Let me also give you a bit of deep down information on the evolution panel. It just not give you the information about the updated MCATs, micro category, business keywords, whatever you call it, but it also gives you. Mirza, can you please mute yourself? Mirza, can you please mute yourself? Thank you. Thank you so much. Okay. So evaluation panel is a very vast range of knowledge from where you can do multiple correction changes. Other than that, you can also check what can help the client. When you talk to client, you must have heard that we are chasing the client for product synonyms, alternate keywords, extra keywords, right? So what you can do is there is a generic manner to add the additional keywords or extra keywords or additional micro categories, or you call it business keywords, in the profile directly from evaluation panel. You guys have that kind of access available. Let me educate you how you can do. Most of you maybe are very old in the process, so they are aware of it. However, let me show you there is an easy way to search. Do you see this? This is a category name. This could be possible that this particular client, my one of it, deals in multiple categories, right? But you must have come across that the client will be dealing in one or two categories. So there are very limitation, or there are very limited chances to add more keywords to it. How you can find out? The easy way to do it is this. When you select any category from here, supposingly I choose electrical goods, equipments and supplies. It's a very generic category. Due to it, sometimes client may feel that I'm getting very common or very generic inquiries. It's not related to my product. So rather choosing this, I feel this instrument, temperature instruments are very relevant to the client because this one deals in it. So what I do is I selected this one. Do you see I have selected this one? And now there is an option for find recommendation. I click on this one. Once I click a find recommendation, there is a new page that's opening.
Once you see this page, the top few listings are here. Top few listings means the company who deals in similar kind of category or similar जब kind of मिक्स मिक्स लैंग्वेज यूज करो ताकि okay, sure, the sure. overall branches ठीक है, sure. I thought that South and everybody will be more comfortable in English. Don't worry, I'll use हाँ Hindi as well. ठीक है, no हाँ issues. मिक्स इंग्लिश हाँ 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 यूज करो ताकि कॉन्वर्सेशन हो वो सबके लिए इजी हो ठीक है, no issues, I'll do that. Okay, guys, interrupt me in between. अगर आप लोग कुछ मिस आउट कर जाते हैं या अगर आपको कुछ लगता है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं बीच में. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन बिटवीन, राइट? ओके, so I was mentioning about ये जो companies, the companies which are mentioned over here are the topmost companies who deal in the same category. ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ top profiles for temperature and instruments here, right? So these are some good examples. And यहाँ पर आपको उनका age on domain भी दिखेगा कि ये लोग हमारे साथ कब से connected है. Since how long they are connected with the portal. That means Trade India. Okay. Once you scroll it down, you will be able to see what exactly inquiry count are they getting. Okay. And if you will also notice, it goes by the amount, right? It goes by the amount. It's a very generic manner. Jitna meetha, utna swad. So it's exactly the same manner. The more money you put in the profile, the right direction of the money can gauge more inquiries, right? So rather reviewing the profile, what you can do in the basic manner. Reviewing can be done by us, but what you can do is you can see the profile section over here, which shows first line is top recommended micro categories for this particular category, right? So, guys, one more reminder to you. Whenever you make this change, it gives either a drastic or either a good kind of example setting changes in the profile. मतलब जब आप इसको चूज करेंगे तो ये एक बहुत ज्यादा चेंज देगा प्रोफाइल को, क्योंकि आप इसको चूज करने के बाद जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, सपोजिंगली मैंने इसको चूज करा टेम्परेचर कंट्रोलर, डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर. मैंने इनको चूज करने के बाद मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पर करा ऐड माइक्रो कैटेगरीज. while doing it will be done on the same time, but it will give the result after 24 to 48 hours. तो क्लाइंट को इससे रिलेटेड इंक्वायरीज जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंक्वायरी का जो सोर्स रहता है, यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. इंक्वायरी सोर्स दैट वी कंसीडर इज product name, micro categories, and these are the sources with which the product inquiry gets generated to the client, जिसकी वजह से क्लाइंट को इंक्वायरीज जो है वो मिलती हैं, राइट? सो जो आप चूज करेंगे, अगर आपने गलत चूज करा तो क्लाइंट को इररिलेवेंट इंक्वायरी भी जाना शुरू हो जाएगा. Whenever you choose it, please guide the client that these are the keywords that I'm going to choose, right? उसको बता करके या उसके साथ आप ये सारे कीवर्ड शेयर कर दो. सिर्फ कीवर्ड शेयर करना एंड उससे पूछ लेना which one is the good one or which one is the correct one. Then when you got the confirmation, update those keywords, राइट? जब आपके पास एक कॉन्फर्मेशन हैंडी होगा कि क्लाइंट ने मुझे कॉन्फर्मेशन दिया था तब मैंने ऐड करे हैं, दैट विल बी द राइट डायरेक्शन. अदरवाइज यू विल बी क्वेश्चन कि आपने इसको क्यों ऐड करा, राइट? अदर देन दैट, ऐड तो हमने कर दिया, मान लो हमसे गलती हो गई, हमने ऐड कर दिया या किसी ने जो पहले ऐड कर रखा था वो गलत चल रहा था. How you can help the client in right manner to delete it, because you don't have to wait for anybody. You have this access, you have the authority to delete it by confirming with client. So scroll it down, you will be able to see the active micro categories on the profile. उसके सामने आपको दिखेगा कि वो कौन कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर कनेक्टेड है, कितने प्रोडक्ट पे मैप हो रखी है. जैसे कि ये कैटलॉग प्रोडक्ट पे चल रही है, फाइबर ऑप्टिक सेंसर, कंप्यूटर पावर सप्लाई, ये किसी किसी प्रोडक्ट पे नहीं चल रही. इट्स अ जेनरिक बिजनेस कीवर्ड एडेड टू द प्रोफाइल, राइट? अब इस प्रोफाइल में कितनी बिजनेस कैटेगरी चल रही है, माइक्रो कैटेगरी चल रही है, दैट इज 57. डू यू सी माय माउस? आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट 57. चाहो तो आप इसी पे क्लिक करके भी इनको डिलीट कर सकते हो, बट आई प्रेफर आपके सामने क्लैरिटी से दिखना चाहिए. सो दिस इज द ओपन व्यू जहां पर आपको सब कुछ दिखाई देगा. यहाँ पर ओपन करने के बाद सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर दैट यू कैन सी. 57 वाज द टोटल. अगर आप 100 चूज करेंगे, if you choose 100, you will be able to see every added micro category on the profile. Then in that case, you can delete one by one. From here, it's one by one. But
If you want to delete it altogether, that means if you find there are more than 2 or 3, that is incorrect. एक से ज्यादा अगर गलत आपको माइक्रो कैटेगरीज दिखती हैं तो आप यहीं पे क्लिक करके उसको चूज कर सकते हैं एक साथ, 1 2 3, जितनी आप चाहें, 4। कैसे देखेंगे? हेलो सर। जी शुभम बताइए। सर मुझे एक बार स्टार्टिंग से सर इसको वो कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे, कोई बात नहीं। नीड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द गाइस। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा इसको अगेन। आपके पास ये एक्सेस होता है इवैल्यूएशन पैनल का। अभी मैं गाइड कर रहा था, अगर आपको लगता है कोई माइक्रो कैटेगरी जो है वो गलत चल रही है, बट बिलीव मी वन पॉइंट, ये चीज मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। गलत इंक्वायरी, इररिलेवेंट इंक्वायरी सिर्फ माइक्रो कैटेगरी की वजह से नहीं जाती है, उसके और भी रीजन होते हैं। तो आपको हर जगह से वो चेक करना पड़ेगा। हर जगह से चेक करने का एक ही सोर्स होता है आपके लिए, बहुत इजी। आप सी ऑल कीवर्ड्स पे जाकर के चेक कर सकते हो। सी ऑल कीवर्ड सेक्शन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। गोइंग बैक टू द मेन प्रोफाइल सेक्शन, आप प्रोफाइल सेक्शन पे वापस आने के बाद सिंपली मेक अ कॉल पे आप क्लिक करेंगे। मेक अ कॉल पे क्लिक करने के बाद जब प्रोफाइल रिफ्रेश हो जाता है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, आई शो यू वंस, ये मैं बॉटम से थोड़ा सा ऊपर यहां पर गया और सी कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सी कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज पे आप अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देता है जहां पर कीवर्ड जो भी प्रोफाइल पर चल रहा होगा, प्रोफाइल के किसी भी सेक्शन में, चाहे वो कैटलॉग पे हो, प्रोफाइल पे हो, कंटेंट में हो, प्रोडक्ट नेम में हो, माइक्रो कैटेगरी में हो, कैटेगरी में हो, एक्सेसिव कीवर्ड्स में हो, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स में हो, कहीं पर भी चल रहा हो, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वो कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करना है जिससे क्लाइंट को इंक्वायरी गई थी, आपको ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ से जा रहा है। अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है तो आप एक सिंपल सा एक एसआर रेज कर सकते हो, काइंडली डिलीट दिस कीवर्ड एज क्लाइंट इज गेटिंग द इररिलेवेंट इंक्वायरी फ्रॉम दैट। वी मोस्टली गेट, मैं आपको ये जो बता रहा था अभी, मैं वैल्यूएशन पैनल में जाकर के वहां से डिलीट करना भी बताऊंगा, बट मैंने ये क्यों एक्सप्लेन करा, मेरा रीजन क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली एसआर आती है क्लाइंट इज गेटिंग फेक एंड इररिलेवेंट इंक्वायरी, और जब क्लाइंट को कॉल किया जाता है तो क्लाइंट को फेक इंक्वायरी के बारे में पता ही नहीं होता कि वो क्या होती है। अभी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इररिलेवेंट क्या होती है? इररिलेवेंट इज व्हेन क्लाइंट इज गेटिंग द रॉन्ग इंक्वायरी बिकॉज ऑफ एनी अनसेक्योर्ड रीजन। उसमें 6 से 7 रीजन तो जेनरिक है, मैं आपको बता देता हूँ। एमओक्यू की वजह से क्लाइंट कहता है, अगर इट्स लेफ्ट एमओक्यू, इट्स इररिलेवेंट इंक्वायरी फॉर क्लाइंट। You don't have to delete that product or keyword in that case. Have to guide it that client may get the less MOQ or more MOQ inquiries as well. उसे रोका नहीं जा सकता, right? We get the SR, client is getting less inquiry or one product inquiry. Please do the needful. There is no needful that can be done in this. We can only add a punchline which says client deal in bulk orders, या क्लाइंट का एमओक्यू आप खुद चेक करिए। कैटेगरी प्रोफाइल की जो होती है कि क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो बना हुआ है, जो कैटलॉग बना हुआ है, क्या हर प्रोडक्ट के ऊपर एमओक्यू एडेड है? इफ देयर इज एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज एडेड, then it's well and good. That means client has a choice to cater that inquiry or not to cater that inquiry, right? But he will get the inquiry. As a layman example, अगर आप एक शॉप ओपन करते हैं, आपके पास चिप्स है, a buyer comes to you and he want 1 packet of chips, it's not necessary कि आप उसको 10 पैकेट ही बेचोगे, या आप 10 पैकेट ही बेचते हो और वो आया है 1 पैकेट परचेज करने के लिए, इट्स योर चॉइस, यू डील विद हिम और नॉट। यू हैव अ पैक ऑफ 10, आप उसको गाइड कर सकते हो कि सर सिर्फ पैक ऑफ 10 होता है, 10 इकट्ठे बेचते हैं, उससे कम नहीं बेचते। नाउ इट्स बिटवीन हिम एंड द शॉपकीपर कि वो सेल होती है या नहीं होती है, राइट? इसमें चिप्स बेचने वाली कंपनी या चिप्स को प्रेजेंट करने वाली कंपनी का कोई रोल नहीं हो सकता। हम हेल्प कर सकते हैं बट कैनॉट कमिट की लेस एमओक्यू की इंक्वायरी नहीं आएगी क्लाइंट को, राइट? तो यही चीज एक्सपेक्टेशन आप अपनी डेवलप करेंगे। इफ यू विल रेज योर एक्सपेक्टेशन इन दिस मैनर, देन यू विल बी एबल टू डिलीवर दिस एक्सपेक्टेशन टू क्लाइंट एज वेल, राइट? क्लाइंट भी तभी समझेगा इस चीज को जब उसको इसी तरीके से समझाएंगे। अदर देन दैट, अब मैंने आपको बता दिया था कीवर्ड का सोर्स कैसे चेक कर सकते हो। लेट्स गो बैक टू इवैल्यूएशन पैनल। इवैल्यूएशन पैनल पे जाने के बाद इफ द सोर्स ऑफ दैट इररिलेवेंट इंक्वायरी इज माइक्रो कैटेगरी, अगर वो माइक्रो कैटेगरी जो है वो गलत चल रही है जिस वजह से इंक्वायरीज जा रही है क्लाइंट को, सो देयर इज एन ऑप्शन। इवैल्यूएशन पैनल ओपन होते ही यहाँ पर आपको एक ये दिखता है, दिस इज बिजनेस कीवर्ड एक्टिव सेक्शन,
कि आपके प्रोफाइल पर, क्लाइंट की प्रोफाइल पर कितने बिजनेस कीवर्ड एक्टिव हैं, किस प्रोडक्ट पे मैप हो रखे हैं, किस प्रोडक्ट मतलब फीचर प्रोडक्ट है या कैटलॉग प्रोडक्ट है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। आपको एक दो डिलीट करने हैं, यू कैन चूज दिस ऑप्शन, ये वाला पेज क्लियरली दिखेगा कहाँ से क्या एडेड है। अदर देन दैट अगर एक दो से ज्यादा है तो आप सिंपली ये माइक्रो कैटेगरी, हम सिलेक्टेड दैट अगर आपको नजर आ जाए, ये दिख रहा है आपको माइक्रो कैटेगरीज का सेक्शन। इस पे जाने के बाद आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे, ये माइक्रो कैटेगरी के सामने जो नंबर लिखा है, एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने ओपन होता है इस तरीके से। You will get this pop-up, and once you choose this pop-up, you will find the keywords available over here. That is business keywords, which is micro categories, right? तो आप इसको चूज करते जाएंगे, जितने आपको डिलीट करने हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप बॉटम पे आएंगे, बॉटम पे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। डिलीट पे क्लिक करते ही वो माइक्रो कैटेगरीज रिमूव हो जाएंगी, राइट। वो माइक्रो कैटेगरीज रिमूव हो जाएंगी, जिसके कारण अब वो माइक्रो कैटेगरीज प्रोफाइल से हट चुकी होंगी और क्लाइंट को इंक्वायरीज जाना बंद हो जाएगा। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। अगर आप इसे लेते हैं तो आने वाली इंक्वायरीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है क्लाइंट का। अगर आपने गलती से करेक्ट जो है ये डिलीट कर दिया माइक्रो कैटेगरी जो सही चल रहा था, तो क्लाइंट का इंक्वायरीज जो है इट विल बी बैफल्ड और वो गिर जाएगा काउंट, ठीक है। अदर देन दैट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करता है, नेगेटिव भी करता है, जैसे मैंने बताया था, लेकिन 24 आवर्स का टाइम मिनिमम गेज आउट करिएगा। ऐसा नहीं कि अभी डिलीट करा तो सेम टाइम पे क्वेरी नहीं आ सकती, आ सकती। 24 वर्किंग आवर्स का टाइम क्लाइंट से गेज आउट कीजिए, विच अप्रोक्सीमेटली 2 days, ठीक है। वो आप गेज आउट करिए कि इतना टाइम लगेगा और रिक्वेस्ट कीजिए कि वेट करेगा क्लाइंट। अदर देन दैट, अच्छा आप लोगों का एक मेजर कंसर्न आता है विच इज लेस इंक्वायरी, right? Less inquiry के लिए I have seen it multiple times that the request is raised for number of inquiries, right? गिनती, right? रेशो कि क्लाइंट को ज्यादा इंक्वायरी चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट, आपका एक्सपेक्टेशन और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन वैलिड है, पर क्या आप प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं? प्रोफाइल को रिव्यू करते टाइम अगर मैं आपको एक कोई एग्जांपल प्रोफाइल दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। It's a 51,000 profile, right? 51,000 profile. That means the contract that we are talking about, what does it exactly have? It have product showcase, category leader banner, PDF brochure, SSL certificate, V card, CHC, video slideshow. There is a lot of it in this package, right? If I talk about the previous package, let's suppose give an example that we are talking about this contract, नीचे वाला, हम इस contract के बारे में एक बार बात करके देखते हैं। सपोज करिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ऑनबोर्ड हुआ है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 22,000 का, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलकम और नॉन कैम प्रोफाइल जो लेस वैल्यू प्रोफाइल होती है, राइट। डोमेन एंड 3 page कैटलॉग, right? Only two things are delivered: domain and catalog. In this scenario, if we check about domain and catalog, that means clients have not taken any other specific promotional activity keyword or any promotional activity apart from organic. ऑर्गेनिक प्रमोशन से हट के क्लाइंट ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, कोई बैनर नहीं लिया है, कोई प्रोडक्ट शोकेस नहीं लिया, किसी भी तरीके से उसकी पोर्टल पर भी रैंकिंग उठने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा प्रमोशन उसको मिलेगा जो बाकी दूसरी प्रोफाइल्स पे अपने प्रोडक्ट के लिए ये सब फीचर्स ले रहा है। कोई टैग्स ले रखा है, किसी ने कुछ लिया हुआ है, राइट। सो दैट इज हाउ द प्रायोरिटी गेट्स सेट्स अप। ऐसे प्रायोरिटी सेटअप हो जाती है वहां पर प्रोफाइल पे। तो इस तरीके से ये इसकी प्रोफाइल का सर्चेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। जब सर्चेबिलिटी रिड्यूस तो डायरेक्ट इंक्वायरी का काउंट भी रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर बीइंग कंपैरेटिव, बट आई एम सेइंग दैट वी शुड सेट द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज we we cater our 30,000 client and 1,30,000 client in the same bucket,
हम दोनों को बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेशन देते हैं कि नहीं सर बिल्कुल आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ये देना जरूरी है, बट किस लेवल का ये आप लोग डिसाइड करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का एक्सपेक्टेशन इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट मे हर्ट द क्लाइंट लेटर ऑन। अब आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा नीचे अगर मैं स्क्रॉल आउट करता हूं, तो इस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिड यू सी दैट? नाउ दैट मीन्स ओनली 50,000 वैल्यू प्रोफाइल इज स्टिल comparatively getting more inquiries. That means इसका bucket जो है वो खुला हुआ है. The bucket of the subjected profile is more open and wider than the other profile. If I comparatively open any other profile, let me see if I can. One second. Okay, let's see. Wonderful. Did you see that? Business states. इस प्रोफाइल के अंदर फिर भी मैं बोलूंगा काफी सारे बिजनेस स्टेट्स एडेड है. लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट ताकि आप लोग पढ़ पाए इसे. Now you can see if there is a business state added in the profile and it's been limitized. अगर आप 2 या 3 स्टेट, इसमें तो फिर भी 10 12 15 स्टेट्स होंगे, अगर आप 2 स्टेट्स ऐड कर दोगे, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली साउथ जोन ऑन ओनली पर्टिकुलर जोन वाइज कि क्लाइंट को सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स चाहिए, राइट, एंड देन you raise the SR for less inquiry, that becomes a challenge. That exactly becomes a challenge. What you are exactly doing is there is a shop in the apartment and you are expecting the customers from the entire colony. It's the only shop in the single apartment. He may get the customers from the next wing or maybe his next wing. जो साथ में बिल्डिंग होगी या उसके साथ बिल्डिंग होगी, वहां से सिर्फ आप कस्टमर एक्सपेक्ट कर पाओगे. लेकिन अगर आप सोचोगे अपार्टमेंट के कोने में एक छोटी सी दुकान हो जिसका कोई आप बोर्ड भी नहीं लगाओगे, कोई बैनर भी नहीं लगाओगे, कोई प्रमोशन नहीं करोगे, फिर भी कस्टमर आ जाए, दैट बिकम्स अ मेजर चैलेंज. गाइस बिलीव मी, मैं ये लेमैन एग्जांपल्स आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि क्लाइंट प्रमोशन के लिए लेमैन होता है, उसको नहीं पता कि प्रमोशन कैसे वर्क करता है. उसने पैसे दे दिए, वो छुट्टी, उसका काम खत्म. व्हाट ही डज इज he leaves everything on your shoulder, on the Trade India's shoulder, कि अब वो बिजनेस ला करके देंगे, right? So that's where we should know कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है. The more you limitize the inquiry, the more you limitize the bucket, जितना छोटा कर दोगे उतना कम चांसेस होता है क्लाइंट का इंक्वायरी रेशो घटने और बढ़ने का. I believe शिवेंद्र you are trying to say something. नहीं, यू आर एग्जैक्टली राइट. इफ अगर हम उसकी एक्सपेक्टेशन से करेंगे कि सर थोड़ा टाइम लगता है और आपने जो अमाउंट दिया है वो लेसर है, इट इज ए बिगनिंग. जब आप इसको हम अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक इंक्वायरी बढ़ेगी, तो ये ऑन द कॉल ही सब कुछ सेट हो जाता है. नहीं बिल्कुल ये आपने सही बोला, बट मे बी दिस इज नॉट द राइट लैंग्वेज टू डू दैट. आई हैव डन सेल्स बट दिस इज नॉट द मे बी राइट लैंग्वेज टू डू इट. हाँ आप ये कर सकते हो, गिव देम अ कंपैरिजन कि सर आपने इतना वैल्यू दिया है, यू आर गेटिंग द लीड, बट हाँ ये बढ़ सकती हैं. आपने कम पैसा दिया है, ये नेगेटिव हो जाता है थोड़ा सा. आप मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वी हैव अदर क्लाइंट्स एज वेल जिन्होंने पैसा काउंट मत गिनवाना, कि जिन्होंने ये पर्टिकुलर सर्विस ली है. दिस सर्विस हैव अ मोर वैल्यू. मनी मनी ऑलवेज हैव अ वैल्यू, मनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द सर्विस हैव अ वैल्यू. तो अगर आप इस सर्विस में इन्वेस्ट करना चाहो, मे बी आई एम नॉट श्योर कि आप अभी करना चाहोगे, आप कुछ टाइम रिव्यू करो, अगर आपको लगता है कि आपको इंक्वायरीज और ज्यादा चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मेन ट्रैफिक गेन होता है. ये वो सर्विस है जो ट्रैफिक को गेज आउट करती है, खींचती है ट्रैफिक को अपनी तरफ. गूगल एडवर्ड्स हो गया, फेसबुक कैंपेन हो गया, कुछ पर्टिकुलर हमारे ऐसे कैटेगरीज हैं, जो ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिन पे क्लाइंट केटर करता है, जिनके ऊपर ऑर्गेनिकली इंक्वायरीज हमारे पास नहीं आ पाती, कई बार एक्चुअली नहीं आ पाती, उसका ट्रैफिक डेवलप नहीं हो पाता है. सो व्हाट वी सजेस्ट इज मेजरली, if we are able to draw some money from the client, कुछ अमाउंट, ठीक है ना, स्टार्टअप के लिए एटलीस्ट, और उसको हम गूगल एडवर्ड्स में डालें क्लाइंट के लिए, उसको दिखाएं कि आपका ये मंथ जहां पे गूगल एडवर्ड चला था, यहाँ पर ये ट्रैफिक गेन हुआ, और उसके बाद वो ट्रैफिक अगर घटा भी है तो गूगल एडवर्ड खत्म होने की वजह से हम ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हैं. एक डोमेन की एज, जब वो हमारे साथ कोई ऑनबोर्ड होता है, इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी, राइट, तो वो जब तक नॉलेज है, जब तक अपना ट्रैफिक गेन करता है, इट टेक्स टाइम, और क्लाइंट इतना पेशेंट नहीं होता. इनिशियल स्टेजेस के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द क्लाइंट कि आप कुछ ना कुछ एडिशनल टूल्स जरूर लीजिए, या बैनर्स लीजिए, या टैग्स लीजिए, जिससे आपका जो है ना रैंकिंग कहीं ना कहीं तो उठे, चाहे पोर्टल पे उठे चाहे गूगल पे उठे, राइट. इवेंचुअली
money is the factor. Everybody knows that money is the factor, right? So, but you guys are more, beautified with the language. तो मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे या क्यों, कब, कहाँ, वो आप लोग बहुत बेस्ट हो इसके अंदर, and I really appreciate you guys on that, right? So, Arshad, yeah, you were saying something. You raised hand. Adarsh. सर एक्चुअली मेरे दो तीन डाउट हैं अभी, जैसे आपने बताया फीचर प्रोडक्ट को लेके कि क्लाइंट कभी फीचर प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो कैटलॉग प्रोडक्ट से ज्यादा वर्क करता है, मतलब इंक्वायरी ज्यादा आती है उस चीज की। तो जैसे यदि क्लाइंट अपना कोई एक प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट में ऐड कर रहा है तो क्या उसी प्रोडक्ट को वो कैटलॉग प्रोडक्ट में ऐड कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एग्जांपल दिया था। वी गिव दिस विंडो टू क्लाइंट टू ऐड सेम प्रोडक्ट इन बोथ द प्लेस, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होता है। क्यों? वो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करोगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो समझेगा इस बात को कि क्यों। जब आप एक ही प्रोडक्ट को सेम नाम से सेम इमेज से दो वेबसाइट पे चलाओगे, क्योंकि हमारे पोर्टल पे फीचर प्रोडक्ट चलेगा और उसके कैटलॉग पे वो वाला प्रोडक्ट चलेगा, सो इट्स अ चांस कि गूगल उसको स्पैम मार्क कर देगा, राइट? गूगल में मार्क इट एज अ स्पैम इफ द प्रोडक्ट इज रनिंग बाय द सेम नेम। सो अब यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल सा फीचर प्रोडक्ट ऐड करवाने का गाइडेंस दे सकते हो, कि आप हल्का सा नाम चेंज करके सिनोनिम के साथ फीचर प्रोडक्ट ऐड कर लो, दैट्स इट। एंड एक और डाउट है सर, जैसे कई बार क्लाइंट के पास में ना किसी एक दो प्रोडक्ट की इंक्वायरी बहुत ज्यादा आती है, बल्क में आती है, और मतलब उसी उसी कीवर्ड को लेके इंक्वायरी आती है और बाकी जो प्रोडक्ट उसके ऐड रहते हैं उसकी एक भी इंक्वायरी नहीं आती है, तो ऐसा कुछ रहता है क्या सर कि मतलब उसका कोई आप कीवर्ड एक काम प्रमोट हो कर गया सकते हो इस? इन दैट केस। श्योर, आप एक काम कर सकते हो। क्लाइंट के जब भी आप प्रोडक्ट ऑनबोर्ड करवाते हो, तो आप क्लाइंट के लिए सिनोनिम्स मांगो। सिनोनिम्स मतलब अगर पर्टिकुलर उसी कीवर्ड के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा इंक्वायरी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्लाइंट को बोलो आप इस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेट कीवर्ड्स अगर आपके पास सर कुछ हैं तो आप वो क्लाइंट, दो। नहीं मैं मेरा क्वेश्चन ये और है सर, क्लाइंट के पास कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक प्रोडक्ट को लेके इंक्वायरी आती है, किसी एक प्रोडक्ट को लेके, बाकी प्रोडक्ट को लेके इंक्वायरी आती नहीं है उसकी, तो ठीक है, ऐसा मैं कुछ आपको होता है इसके क्या बारे में सर एक कि छोटा वो सा प्रोडक्ट? एग्जांपल देता हूँ। राइट, मैं आपके इसके बारे में रीजन भी बताता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, ट्रेड इंडिया अपने खुद की कैटेगरीज को भी प्रमोट कर रहा होता है, साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट मार्केट में ज्यादा होती है इन कंपेरेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स जो वो केटर करता है। तो ये होना बिल्कुल लाजमी है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल इन द सिचुएशन वेयर इन क्लाइंट मे गेट अ डिफरेंट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि उसका कुछ प्रोडक्ट का इंक्वायरी ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। That can never be committed by anybody in the company, or no other companies can also commit. But there is one thing: if he is specific about that one product inquiry, yeah, two product inquiry, that I need the inquiries more from this particular product or these two three products. So ensure आप उन प्रोडक्ट्स को फीचर्ड प्रोडक्ट्स, आई एम सॉरी, आप उन प्रोडक्ट्स को मेजर प्रोडक्ट के अंदर ऐड करवाइए। Do check if the major products are added or not. If major products are added, then it's good. That means it's separately and additionally promoted. Other than that, those two, three products which are more required to be get promoted, जिसके ऊपर client ज्यादा inquiry expect कर रहा है, तो आप उन products के ऊपर कोशिश करिए कि बैनर चेक करिए, राइट? अगर क्लाइंट के बैनर्स जो हैं वो किसी और प्रोडक्ट पे रन कर रहे हैं, सजेस्ट करिए कि इस बैनर को हम रिप्लेस करवा सकते हैं यहाँ पे। कैटलॉग के ऊपर अगर जो उसका फ्रंट पेज बैनर होता है वो किसी और प्रोडक्ट से चल रहा है, लेट्स इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इन दैट केस, बैनर रिप्लेस करा दो कैटलॉग का, कि कैटलॉग खोलते ही सबसे पहला प्रोडक्ट वो दिखाई दे जो क्लाइंट अब सबसे ज्यादा प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से आप उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को थोड़ा सा फोकस ज्यादा करवा सकते और हो, राइट? बट अदर देन मुझे दैट पूछना देयर इज था नो सर, ऑप्शन। सर मुझे ये पूछना था, हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ट्रेड इंडिया के पास में कितनी इंक्वायरी आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम पता कर पाएंगे? कि ऐसा क्या होता है सर कि समटाइम क्लाइंट पास 50 से 60 हजार रुपया पे कर रहा है और उसको महीने के 2 से 3 इंक्वायरी आ रही है, और आप हम इसका उसे फिर से अपसेलिंग आप इसको करने के लिए बिल्कुल कर फोर्स सकते हो। करते हैं सर? हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। ट्रैफिक गेन करवाने के लिए आप पूछ सकते हो कि इसका ट्रैफिक कितना चल रहा है फिलहाल, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इसके लिए। बट यस, योर डीएम कैन चेक इट एंड हेल्प यू ऑन दिस। उसके लिए भी सीआरएम को एचआर रेस करनी पड़ेगी सर?
आप SR रेज कर सकते हो, बट मेजरली वी डोंट हैव द कंप्लीट एक्सेस टू गेट द रेशो और नंबर्स ऑफ इंक्वायरीज दैट क्लाइंट हैज। कंफ्यूजन है थैंक यू सर। आदर्श, इस पे एक कैच है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे एक कैच है। द कैच इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रैफिक स्टैट्स और द इंक्वायरी स्टैट्स। तो इंक्वायरी स्टैट्स तो आई डोंट थिंक सो कि वो अभी अवेलेबिलिटी हो पाएगी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। फिर भी अगर कोई ऐसा कोई आप पिच कर रहे हो किसी भी क्लाइंट को, तो आप एक बार B2B टीम में विवेक शर्मा या अभिषेक को आप अप्रोच कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर इंक्वायरी स्टैट्स के लिए। इफ दे कैन प्रोवाइड यू, तो वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक स्टैट जानना है कि हाउ मच ट्रैफिक ऑन दिस कीवर्ड, ठीक है, ऑन आवर पोर्टल, तो वो आप जावेद इकबाल से आप ले सकते हो, लूपिंग CRM। एक्चुअली कैसा होता है सर, यदि हम क्लाइंट से सेम चीज के लिए इंक्वायरी इंक्रीज करने की अमाउंट लेके आते हैं, जब यदि इंक्वायरी उसको नहीं आ रही तो वो फोर्स सेलिंग कहला जाती है, जिससे ट्रेड इंडिया का एक तरीके से मार्केट में नाम जो होता है उस लोकेशन में बेकार होता है सर। क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट ऐसे हैं जो अच्छा पे कर रहे हैं उनको, लेकिन उनको मंथली 2 से 3 इंक्वायरी आ रही है, वो भी इरेलेवेंट। और उससे उसके यदि मैं अभी अप सेलिंग करने के लिए जाऊंगा या रिन्यूअल की बात करने जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो फोर्स सेलिंग कहलाएगी सर मेरी। तो वो चीज मुझे पता करनी थी कि उसको लेके अभी इंक्वायरी है ट्रेड इंडिया के पास में, तो मैं उसको फिक्स करूँ, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं वो उसका हाँ, टाइम वेस्ट अदर हो रहा है मतलब। सेम प्रोसीजर इसका वही रहता है। यू कैन चेक विद विवेक शर्मा एंड अभिषेक फ्रॉम B2B टीम, राइट? तो आप उनको एक बारी मेल करके ये चीज पूछ सकते हो, लूपिंग योर CRM पर्सन एज वेल। अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ स्टैट्स जानना चाहते हैं उसका, क्योंकि ट्रैफिक स्टैट्स क्या है, तो उसके लिए आप जावेद इकबाल को आप चाहें तो आप मेल आउट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू योर CRM पर्सन एंड ही विल फॉरवर्ड इट टू यू, राइट? जगप्रीत सर, हेलो। क्या श्रीकांत? सर कह रहा था कि कोई भी ऐसा कीवर्ड है जो हम लोग जो जैसे कि हम लोग माइक्रो कैटेगरी ऐड करते हैं ना, वहां पे मेरे को मिल नहीं रहा है। क्लाइंट ने मेरे को शेयर किया है, ठीक है, और ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे माइक्रो कैटेगरी में वो दिख नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हम माइक्रो कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं इन दैट सिचुएशन। हम लोग चेक कर सकते हैं इफ दैट कीवर्ड इज गेजिंग मोर ट्रैफिक। अगर आपने जो कीवर्ड सजेस्ट करा उसके ऊपर मोर ट्रैफिक हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं या मार्केट में ट्रैफिक है उससे ज्यादा, सो वी कैन डेफिनेटली क्रिएट न्यू माइक्रो कैटेगरी और उसके उसके ऊपर लिए वर्क क्या करके करना उसे होगा? ऐड करना है। आप CRM को उसके लिए आप जो आपको है ईमेल बिल्कुल करना होगा अमित भारद्वाज को, लूपिंग CRM, या CRM को आप कर देंगे तो वो CRM वाला पर्सन जो है कैटेगरिकली लिखना होगा आपको कि वो माइक्रो कैटेगरीज हैव टू क्रिएट अ माइक्रो कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। तो वो आप अमित भारद्वाज को डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। अमित भारद्वाज जावेद इकबाल फ्रॉम पोर्टल टीम, पोर्टल टीम ही क्रिएट करेगी, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, कि अगर मैं सिर्फ कुछ ऐसे भी क्लाइंट है कि जो हम लोग का मेटा टैगिंग वगैरह भी हम लोग करा देते हैं कि वेस्ट बंगाल, हावड़ा, जैसे कि हमारा कोलकाता में 4-5 लोकेशन में उसको बिजनेस चाहिए, ठीक है, तो हमारा मेटा टैगिंग में सिर्फ हावड़ा दिखाता है, तो हावड़ा कहीं वहां पर हावड़ा दिखाता है और उसके पास इंक्वायरी नहीं जाती है। लेकिन उसी सर्च के अंतर्गत में अगर कोलकाता में मैं उसको सर्च मारता हूँ तो उसका प्रेजेंस शो नहीं करता है और इंक्वायरी वहां पर लोकल इंक्वायरी के ऊपर वो काम करता है। तो उस बेसिस में हम लोग कैसे उसका इंक्वायरी जनरेट करवा सकते हैं? सारा कुछ कर दिया हूँ, माइक्रो कैटेगरी सब कुछ ऐड कर दिया हूँ। ये हावड़ा और कोलकाता वाला ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। जैसे कि वेस्ट बंगाल, हावड़ा, कोलकाता, ठीक है, कोई भी या मिदनापुर, ठीक है, ये लोकेशन वेस्ट बंगाल के अंदर में ही है, ठीक है। किसी भी क्लाइंट को अगर गूगल में जाकर के अगर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर इन कोलकाता मारिएगा तो कोलकाता प्रेजेंस में उसका शो करता है, और हावड़ा मारेंगे तो हावड़ा प्रेजेंस में डायरेक्टली वहां पे शो करता है, लेकिन उसका प्रेजेंस एकदम नीचे। जैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जैसे कि मैं कैटेगरी वाइज प्रमोशन करा रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट को टॉप लिस्टिंग में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा इसी 4-5 लोकेशन में मेरा दिखना चाहिए एक प्रोडक्ट में। सिटी वाइज पेजेस में तो सिटी वाइज दिखेगा। अब नहीं सर, इसके लोकेशन लेकर के मैंने 2 महीना से मैं CRM टीम से मेरी बात हो रही है। मेरा एक कंपनी है TNT इंटरप्राइज, ठीक है, उसने कंबाइन हार्वेस्टर पे ऊपर कैटेगरी लीडर लिया है और उसका बिहार में
या झारखंड में या वेस्ट बंगाल में या मिदनापुर में, ठीक है, उसका प्रोफाइल गूगल से सर्च करने के बाद जो कस्टमर का नॉन पेड मेंबर है उसका प्रोफाइल दिखता है, लेकिन उसका प्रोफाइल 3rd नंबर, 4th नंबर या 5th नंबर पे दिखता है, क्यों? इसको लेकर के मैंने सीआरएम टीम से 3 महीना से बात हो रही है, नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा केस होगा तो डायरेक्टली मतलब आप डायरेक्टली मुझसे ही बात कर लीजिएगा, डायरेक्टली जगदीश से या किसी भी लीडर से, आप आशीष से, किसी भी लीडर से आप डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। दर्शना मैडम से बात हुई, दर्शना के बाद उन्होंने एक और दर्शना से नंबर वो दिया। दर्शना से वो केस अभी डिस्कस कर लूंगा जो आपने दर्शना से बात करी है, तो ये चीज हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए मुझे गूगल मीट पे आपको भी लेकर के आना होगा, उस केस को खोल करके आप दिखाओगे और फिर हम समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली जी, और कौन सा पेज ऊपर आ रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि हमारे टॉप में शो कर रहा है। बिल्कुल होता है। फ्री कस्टमर्स दे आर पोस्टिंग द फीचर प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद देयर प्रोफाइल। तो जो जहाँ कई बार और फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन थोड़ा सा काफी टाइम से हम इसको रन कर रहे हैं तो उसका प्रमोशन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और वो फ्री लिस्टिंग हमारे पास बहुत टाइम चल रही होती है, आज से 7 साल 8 साल 9 साल पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि और एनरिच डिटेल्स भी होती है। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जब मैं फीचर प्रोडक्ट पोस्ट करके मेरे पास बिजनेस लीड्स आ रही थी आज से 2-4 साल पहले, और तब मेरे पास अच्छी लीड्स आती थी और अभी नहीं आती, क्योंकि जब क्लाइंट एक बार पैसे हमें दे देता है तो दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू अपडेट देयर प्रोडक्ट कैटलॉग। तो हम प्रोडक्ट तो अपलोड कर देते हैं। हाँ जी, और एक और चीज सर, लास्ट क्वेश्चन सर, अपडेट कर देते हैं। जी बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी क्लाइंट का हम लोग का लाइव होता है, लाइव होने के बाद मैंने माइक्रो कैटेगरी भी ऐड कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट भी आपका लाइव हो गया। जैसे कि 8/11/2023 को लाइव हुआ मेरा प्रोफाइल, मेरा क्लाइंट का, मैंने माइक्रो कैटेगरी सब कुछ ऐड कर दिया और 232 माइक्रो कैटेगरी भी ऐड कर दिया। बट आज के दिन उसको सिर्फ 18 तारीख को एक इंक्वायरी मिली है, रिसीव इंक्वायरी में। सीआरएम टीम से बात कर रहा हूं तो बोला कि होगा, टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना टाइम लगेगा, तब इंक्वायरी आएगा। और वो लाइव हुआ था 8/11/2023 को। 8/11/2023 होती है, उसके प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है उसका क्या आपका है। और सर, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, वैल्यू देखने पड़ेगी कि किस वैल्यू का है। और दूसरी चीज इसमें ये होता है कि आपने माइक्रो कैटेगरीज जो ऐड करी हैं वो प्रोडक्ट पेज के अंदर ऐड करी हैं या प्रोफाइल के अंदर ऐड करी है, ठीक है। सर तो आप अभी जो enrichment ये का प्रोसेस क्लाइंट जो भी एवल्यूएशन आपने पैनल देखी में जाकर के मैंने ऐड किया है। वो बिजनेस प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल पर होती है, बिजनेस कैटेगरीज हैं वो प्रोफाइल पर ऐड होती हैं। अभी जो जसप्रीत ने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट पेज के अंदर जाकर के प्रोडक्ट पे जाकर के डिटेल्स अपडेट करेंगे, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन दोनों कि में वो किया हूँ प्रोडक्ट सर। के साथ लिस्टेड हो। ठीक है, वो प्रोफाइल हम देख लेंगे, आप एक बार दे दीजिएगा। एक प्रोफाइल किसी का भी कोई 1-2 प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, आप लोग सभी की बात कर रहे हैं, प्रोफाइल आप डिस्कस एक्चुअली सर मैं 1-2 प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे नहीं पास कुछ मैं ऐसे बात भी कर रहा ये हूँ, सीआरएम मैं टीम बात भी कर मेरे रहा हूँ को आपसे। मेरे से डायरेक्टली ये, हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप 1-2 प्रोफाइल आप डिस्कस कर लेंगे थॉरली, so you will get an idea how to proceed the enrichment or the cases for the betterment। अच्छा हाँ, ठीक है एक और 2 प्रोफाइल से you will get a complete idea how to proceed the cases। ठीक है, आप अगर मुझे 10 केस दोगे, ऑब्वियसली बात है 100% पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन हाँ कोशिश ये होगी कि 60, 70, 80, 90% पे भी इम्प्रूवमेंट आए। सर ठीक है, हाँ जी हेलो या जी। सर मैं कोलकाता सेमिकॉन में काम करती हूँ सर। आई जस्ट वांटेड कि हम लोग का ऐसा कोई प्रोफाइल वैल्यू पे इंक्वायरी काउंट का कुछ बात रहता है क्या कि 30,000 प्रोफाइल को इतना काउंट के लिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं है कि there must be many profiles who's getting more than मतलब ऐसा भी होगा कि बहुत सारी प्रोफाइल्स होंगी जो 100 and 200 and 500 and above लीड्स भी जा रही होंगी और जहां पर 50 लीड्स भी नहीं जा रही। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रेंज कि व्हाट द प्रोडक्ट रेंज द प्रोफाइल हैज। ओके मतलब एक ही प्रोडक्ट रेंज पे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने अगर 70,000 दिया है और दूसरे किसी क्लाइंट ने अगर 1.5 लाख दिया है, तो यहाँ पे इंक्वायरी वैरी होने का कोई चांसेस
है बिल्कुल या होगा, ऐसा कि इतना बिल्कुल होगा, बिल्कुल इतना होगा। क्लाइंट को इतना इंक्वायरी जाएगा, या ऐसा कोई कैपिंग नहीं या नहीं, ऐसा काउंट कुछ है? काउंट 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 का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 70,000 will get a 50 inquiries और 1.5 लाख will get a 100 inquiries। हाँ, ओके। वेरिएशंस होगा। जो 1.5 लाख दे रहा है ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। और जो आपको 70,000 रुपए दे रहा है या 55,000 या 60,000 रुपए दे रहा है, उसको हो सकता है कि 50 लीड्स आए। इट्स बिकॉज ऑफ कि अगर उस प्रोडक्ट रेंज के अंदर अगर हमारे पास 10 20 30 प्रोफाइल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो होगा, ओके। ठीक है। तो एंड अब सर 1 अनदर लाख के क्वेश्चन इज केसेस। सर, जी जी। सर ये हम लोग मतलब क्लाइंट को शो कैसे करेंगे? कोई के मतलब कोई कोई क्लाइंट को हम लोग कंपैरिजन जब शो करते हैं ना कि हम लोगों जस्ट का गो टू द, देखिए आपका इतना। अभी अभी जगप्रीत ने क्लाइंट एवोल्यूशन पैनल बताया था कि क्लाइंट हाँ एवोल्यूशन जी, पैनल आप ओपन दिखाया करके था अभी सर। हाँ। आशीष ने भी ओपन किया था। तो क्लाइंट एवोल्यूशन पैनल इज द बेस्ट कंपैरिजन टूल, ठीक है, विद इन द प्रोफाइल। कि आप उस प्रोफाइल पे ओके। किसी भी कैटेगरीज पे जाओगे तो आपको वो बता देगा कि कौन सा प्रोफाइल कितनी लीड्स जो उस क्लाइंट कैटेगरीज लिस्ट पे आता उसको है मिल। वो कितने टाइम का है और क्या इंक्वायरी है, वो ही है। हाँ बिल्कुल, वो पूरा कंपैरिजन आपको दे देगा। आप एक बार ओके। मतलब जाओ उसके अंदर, क्लाइंट एवोल्यूशन पैनल के अंदर कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ होगा, वो आप जब डिस्कस करोगे तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। अगर सेड श्रीकांत कि एक दो प्रोफाइल अगर हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वी बोथ हैव एन आइडिया, ठीक है, to proceed the case further for the improvement। ठीक है। एंड सर हम लोग क्या अभी एक्सपोर्ट इंक्वायरीज पे कुछ कमिटमेंट या ऐसा कुछ कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, अभी नहीं। एक्सपोर्ट इंक्वायरी का क्या है अभी? मतलब कोई क्लाइंट अगर 2 लाख रुपए दे रहा है तो हम लोग किस हिसाब से उनको एक्सपोर्ट, वो तो नेचुरली पूछता है ना कि कितना करके एक्सपोर्ट इंक्वायरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? एक्सपोर्ट इंक्वायरीज के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, और जो हमारा ग्लोबल सेलर पैकेज भी निकला था उस पर हम कमिटमेंट देते हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, कीवर्ड्स हैं उस पे कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर हम 10 लीड्स की कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो है, और उसके अलावा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर। बस आप यही कर सकते हो कि अगर इन केस ऑफ अगर आप क्लाइंट एवोल्यूशन पैनल से कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि इस कैटेगरी के ऊपर क्या क्या लीड का फ्लो है, आप फ्लो भी वहीं से देख सकते हो। अच्छा। आप फ्लो भी वहीं से देख सकते हो क्लाइंट एवोल्यूशन पैनल से, कि मैंने एक प्रोफाइल ए खोली और मेरे पास BCDEFGH प्रोफाइल आ रही है, फिर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी तो मेरे पास उस प्रोफाइल पे उस कैटेगरी पे कितनी लीड जा रही है। इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं वहाँ पर। सर एक बार दिखा देंगे क्या स्क्रीन शेयर जबकि करके? किसी भी एक इंटरनेशनल क्लाइंट का कंपैरिजन करके, दिनेश जब तक आप पूछ लो कुछ पूछना है तो। सर 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो अभी जो रिसेंटली जो क्लाइंट को लेस इंक्वायरी जा रही है और उसके साथ साथ इरिलेवेंट इंक्वायरी का जो पोर्शन बढ़ गया है, उसका रीजन समझ नहीं आ रहा है कि रिलेवेंट प्रोडक्ट की इंक्वायरी नहीं जा रहा है सारी प्रोडक्ट मैपिंग होने के बाद भी, बट इरिलेवेंट प्रोडक्ट की इंक्वायरी मैक्सिमम जा रही है। और जब हम SR क्रिएट करते हैं या फिर मेल करते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ डिपार्टमेंट को, तो हमें वहां से रिप्लाई आता है कि क्लाइंट के हमने इरिलेवेंट कीवर्ड नेगेटिव किया है इसलिए उसका प्रोडक्ट रिगार्डिंग इंक्वायरी फ्लो डाउन हुआ है, या फिर ऐसे रीजन आता है जो कहीं से भी हमें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे वो चीजें। इसमें एक चीज बताऊंगा दिनेश कि हम डेली ना किसी न किसी प्रोफाइल को रिव्यू कर रहे होते हैं। इररिलेवेंसी एग्जांपल एक बताता हूँ मैं तुमको कि एक प्रोफाइल मैंने खोला और मेरे पास मुझे दिख रहा था कि नवंबर हैज 100 इंक्वायरीज और दिसंबर हैज 50 इंक्वायरीज टिल डेट, ठीक है। हम इररिलेवेंसी किसको बोलते हैं? व्हाट इज इररिलेवेंसी? जहां पर कि क्लाइंट इज नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरीज, कि उसके वो प्रोडक्ट से नहीं जा रही है। अब प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरीज की वो कीवर्ड्स तो मैच करा दिए हैं। अब कीवर्ड्स में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है उसके वेरिएशन बहुत सारे हैं, जैसे केमिकल्स में हो जाता है, जैसे आपका किसी मशीनरीज में हो जाता है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं कि यार कि उसको ये इसमें डील नहीं करता है, इस साइज में नहीं और इस साइज में कर रहा होता है।
नहीं सर, यहाँ पे साइज का और उसके एप्लीकेशंस का कोई रोल ही नहीं है। मैं सिंपल सिंपल प्रोडक्ट की बात करूँ, मेरे बहुत से केसेस मैंने शेयर भी किए हैं, शायद आपको पता होगा, इवन एचओडी को भी पता है वो सारी चीजें। बट अभी तक कोई मतलब उसके ऊपर कुछ भी आउटकम नहीं मिला है। हम सब कुछ कर चुके हैं, सारे प्रोफाइल यानी उसके मैक्सिमम प्रोडक्ट भी हमने ऐड करवा दिए है। मतलब इसके प्रोडक्ट के अलावा सारी इंक्वायरी आई है, प्रोडक्ट रिगार्डिंग उसका इंक्वायरी नहीं जा रही। आई ऐसा हैव कौन आई सा हैव ऑलमोस्ट 25 आई हैव 25 केसेस, और उससे ज्यादा ही होंगे, 25 से ज्यादा ही केसेस मेरे पास है अभी सैंपल में। हाँ हाँ मैंने सब सेव करके रखा हुआ, मेल मैंने शेयर भी किया हुआ है सब रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को, बट नो आउटकम्स। कोई अभी तक आउटपुट नहीं मिला उसमें पॉजिटिव तरीके से। मतलब डेली बेसिस पे अगर हम कोई इरिलेवेंट कीवर्ड नेगेटिव कर रहे हैं उसको, तो दूसरे दिन नए कीवर्ड से इरिलेवेंट इंक्वायरी आ रही है, जो उनका कोई लेना देना ही नहीं उसके प्रोफाइल के साथ है, उसके प्रोडक्ट के साथ। दिनेश, और उसमें हमें सब रिप्लाई क्या आता है, एक उसमें एक हमें रिप्लाई एक क्या आता है सर, हाँ हाँ सीआरएम कुछ और बोलता है, डायल B2B कुछ और बोलता है, सीआरएम के हेड कुछ और बोलते हैं। मतलब अलग अलग पर्सन अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं कि एक बोला फीचर प्रोडक्ट की वजह से इंक्वायरी आया। अरे फीचर प्रोडक्ट में चलो उसका एक प्रोडक्ट ऐड है, समझ में आया, और उसके प्रोडक्ट शोरूम में उसके कैटलॉग में 133 या 150 या 100 प्रोडक्ट ऐड, उसमें से एक भी इंक्वायरी नहीं गया उसको। अगर तुम या फिर 25 के 25 नहीं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये बोल रहा है कि हम्म। उसके हमने कीवर्ड इरिलेवेंट कीवर्ड नेगेटिव मार्क किया इसलिए उसको पोल रिगार्डिंग इंक्वायरी कम हो गई है। हाउ कैन इट पॉसिबल सर? तो फिर हम नेगेटिव करके उसको गलत कर रहे हैं फिर। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बट give I'll give a short clarity on this कि जहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल यूज किया कि वी हैव 100 लीड्स इन नवंबर, और दिसंबर में आकर के वो लीड्स हमें 50 दिखती है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो क्लाइंट को कोई भी रिलेवेंसी जा रही थी, किसी भी कीवर्ड से जा रही थी, कहीं पर भी वो ऐड था, लाइक सिनोनिम्स में ऐड था, या एड्स गलत थी, या फीचर प्रोडक्ट्स में ऐड था, और और दूसरा हमने उसको मार्क कर और दिया, तो दूसरा एक ऑब्वियसली बात है कंसर्न मैं दूसरा एक कंसर्न, एक मिनट सर, लेट मी सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। दूसरा एक कंसर्न, अभी बीच में बहुत से क्लाइंटों का एक ही कीवर्ड पे इंक्वायरी फ्लो बढ़ गया, और उसमें से बहुत से केसेस तो ऐसे है कि जिसका क्लाइंट उस कीवर्ड के रिगार्डिंग को लेना देना भी नहीं है। जब हमने इससे रिप्लाई मांगा ऊपर से रिस्पॉन्सिबल पर्सन और डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बोला कि हमने इसके ऊपर कैपिंग करवाया था इसलिए इसका इंक्वायरी फ्लो बढ़ा है। बट हमारा कंसर्न है उस प्रोडक्ट का कोई लेना देना ही नहीं उस प्रोफाइल के साथ, तो उस प्रोफाइल के ऊपर उस प्रोडक्ट कैपिंग करा के इंक्वायरी पूरा महीना देने का कोई मतलब ही नहीं बना। 100 इंक्वायरी जा रही है उस प्रोडक्ट की जिसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है दिनेश, तुम्हारा जो कंसर्न है वो एक बार हम फिर गूगल मीट पे कर लेते हैं। अगर तुम 25 प्रोफाइल बोल रहे हो तो इट्स अ जी, ह्यूज प्रोफाइल अरे काउंट। मैंने मेल किया हुआ है, मेरे 2 महीने से मेल चल रहा है, इंक्लूडिंग एचओडी वर्टिकल हेड उसके अंदर भी ऐड है। 2 महीने ठीक से है, मेल चल रहा है, मेरी बहुत सी प्रोफाइल को मैंने सैंपल 10 से 12 तो उसमें अटैच भी किया है। सर मेरा एक क्वेरी है सर। हसन चलो ना सर। मेरा एक क्वेरी है, मैं परिमल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, परिमल बोलो। सर बोल रहा हूँ ना, देखो हम लोग का जो परिमल, इंटरनेशनल आवाज क्लियर नहीं है। उसके तो सर गूगल एडवर्ड्स हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ थोड़ा, हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ, बोलो 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 हेलो, बोलो बोलो हाँ, बोलो। बोल रहा हूँ कि इसमें जैसा हम लोगों का जो इंटरनेशनल रीच होता है ना, उसके लिए सर गूगल एडवर्ड्स तो सर हम लोगों के पास एक टूल्स है। बट अपार्ट फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स टूल्स, तो कस्टमर को हम लोगों को कुछ इंटरनेशनल लीड ना दिखाना है कि इंटरनेशनल लीड उनके प्रोफाइल में है। तो उसके लिए तो सर मैंने वो उनका जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज है वो जिस आगे पर हम लोग उनके प्रोफाइल में कुछ इंटरनेशनल लीड क्यों करवा सकते हैं। तो मेरा कुछ क्लैरिटी आई क्लाइंट क्या है, जगप्रीत? तो थोड़ा सा दिखा के ना फिर हम लोग उसको मतलब अपडेट कर सकते हैं। परिमल, आपकी वॉइस जो है वो आधी ब्रेक हो रही है और आधी सुनाई दे रही है, तो क्वेश्चन इज नॉट सो क्लियर। आपने मेंशन करा कि इंटरनेशनल इंक्वायरीज जो हैं उसके लिए गूगल हाँ सर, एडवर्ड्स और उसके बाद आई कुडंट गेट मोर, उसके बाद आगे आप एक बार फिर से क्वेश्चन में रीड करिए। सर मैं बोल रहा हूँ
जैसे सोशल मीडिया तो सर एक टूल है हम लोग का, जो उनके प्रोफाइल में होने से इंटरनेशनल लीड हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है सर। और से वो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो और कोई के बाद option है सारा सर जिसमें सारा स्टेटमेंट ब्लैंक था। हाँ परिमल, वो और के बाद सारा स्टेटमेंट ब्लैंक था। अच्छा, अभी नेटवर्क सुनाई दे इशू रहा है है आई थिंक। हाँ 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 अब बोल रहा हूँ कि सर मैंने उनके प्रोफाइल में ना इंटरनेशनल स्टेट मैंने मार्क कर दिया है, राइट सर। ठीक है, फिर भी इंटरनेशनल ना स्पेस उनके पास इंटरनेशनल लीड्स कुछ नहीं आ रहा है, तो और कोई ऑप्शन है सर जिसके थ्रू कुछ इंटरनेशनली हम उनको प्रोवाइड कर सकेंगे? पहली चीज, एक छोटा सा पॉइंट ये है परिमल इसके अंदर कि आप अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो ना, तो दैट इज रिस्ट्रिक्शन, वो इम्प्रूवमेंट फैक्टर नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन फैक्टर है वहां पे। अगर क्लाइंट को अराउंड द ग्लोब कहीं से भी किसी भी कंट्री से इंक्वायरी जा सकती थी, तो शायद अब वो रुक जाएगी। अब वो सिर्फ उन्हीं कंट्री से जाएगी जो आपने मार्क करी है एज अ बिजनेस कंट्री, राइट? तो नहीं इट्स सर, अ मैंने कोई काइंड ऑफ मार्क नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन। मैंने मतलब जितना भी एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हम लोग को अब दिया होता है वो सारा मैंने मार्क कर दिया। कहाँ पर, हाँ तो प्रोफाइल पर या प्रोडक्ट पेजेस पे? सर प्रोडक्ट पेजेस के नीचे में जो दिखाता है ना सर, जो इंटरनेशनल जो मार्केट, वहाँ पर मैंने उसको सिर्फ सिलेक्ट कर दिया पूरा। ठीक है, अच्छा किया, अच्छा किया। ये हम भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट पेजेस पे तो सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, तो फिर भी सर उनके पास ना 1 या मैक्सिमम 2 मंथ पे आ रहा है, तो और कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग और कुछ इंटरनेशनल लीड्स के प्रोफाइल में नोट कर पाएंगे? ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस हम करते हैं चूज फॉर द इंटरनेशनल, या कुछ ऐसी कंपनीज जहां पर हम लीड का फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं वाया पोर्टल एज ऑफ नाउ। और अगर कोई एक ऐसी कैटेगरी में पता चल जाती है कि विद बंच ऑफ अकाउंट्स, तो हम पोर्टल टीम को बोलते हैं कि उस कैटेगरी को प्रमोट करो टू हैव मोर लीड्स, मोर विजिबिलिटी एंड मोर लीड्स। लेकिन ठीक है, मतलब फॉर द क्विक सॉल्यूशन, ठीक है, वी रन द ईमेल मार्केटिंग और जनरेट रिस्पॉन्सेज वाया ईमेल मार्केटिंग। ये करते हैं हम। अच्छा, हाँ, ये ईमेल मार्केटिंग से करते हैं और ईमेल मार्केटिंग से रिस्पांस भी आता है हमारे पास। वो रिस्पांस कहीं पर लिस्टेड नहीं होता है, लाइक इंक्वायरीज के आप एमटीआई में देख सकते हो, आप अपने हाउसकीपिंग में देख सकते हो, अटैच्ड होता है प्रोफाइल से, एसोसिएटेड होता है प्रोफाइल से। बट ईमेल मार्केटिंग का क्या है कि इट इज ऑल अबाउट द मैनुअल, क्या बोलते हैं, डेटा शेयरिंग विद द क्लाइंट। और वो कहीं पर लिस्टेड भी नहीं होता कि मैंने उस क्लाइंट को ईमेल मार्केटिंग करी। मैंने पहली बार, मैंने आज एक ईमेल एक सेट डेटा के ऊपर मैंने शेयर किया, वहां से कुछ रिस्पांस हुआ, हो सकता है कि 10-15 हो पहली बार में। उसके बाद दोबारा से जब हम रीट्रिगर करते हैं उसको, तो फिर वो बढ़ जाता है, 20-30 बढ़ जाता है, और फिर 50-60 भी रिस्पांस आते हैं हमारे पास। कुछ केसेस में हमने देखा है, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में तो सर ये हमारे कैसे करेंगे, पास। थोड़ा सा गाइड करिए सर, वो ईमेल मार्केटिंग उनका कैसे करेंगे? वो हम करेंगे तो इंडिया करता है उसकी ईमेल मार्केटिंग, हमारी एसईओ टीम इनिशिएट करती है। ईमेल पहले हम ईमेलर क्रिएट करवाते हैं उसका डिजाइनिंग से, उसके बाद फिर ईमेलर होता है उसके ऊपर, वो हम ही करेंगे। आप सीआरएम को ही बोल दीजिएगा तो इसके लिए सर कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बताइए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ईमेल मार्केटिंग, अगर वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम ईमेल मार्केटिंग करवाते ही करवाते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा, तो सर इसके लिए क्या मतलब बेस्ड ऑन सीआरएम द को एक मेल कैटेगरी। हाँ, आप मेल पे लिख सकते हैं एक कि मेल प्लीज कर देने प्लीज से होगा शेड्यूल, सर? आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, प्लीज शेड्यूल ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, जनरेट हो अच्छा जाता अच्छा है। ठीक अच्छा, ठीक है। आई थिंक। हेलो सर। सर हाँ हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज के रिगार्डिंग, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जो भी इंक्वायरीज आ रहे हैं उनको एमटीआई से रिस्पांस करें, बट उसके बावजूद उनको कोई अलग से रिस्पांस नहीं मिलता। फिर भी हमने एचआर भी रेज किया था, बट B2B टीम से कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज क्लाइंट बोलते हैं कि उनको रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अलग से? हम क्या कर रहे हैं शुभेंदु कि जो इंटरनेशनल केसेस के ऊपर जो रिस्पांस का इशू आ रहा है ना, वी आर वैलिडेटिंग फ्रॉम आवर एंड। हम B2B को नहीं बोल रहे हैं कि B2B टीम उसको वैलिडेट करे, वी आर सेल्फ वैलिडेटिंग दोज इंक्वायरीज, ठीक है, फ्रॉम आवर एंड। और ऐसा नहीं कि रिस्पांस नहीं मिलता है, बिलीव मी कि एक हमने एक अभी
एक हमने रफ चेक किया था उसका कि जो भी इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं और उसके ऊपर कर रहा है, हमने 70% इंक्वायरीज, जैसे कल कुछ प्रोफाइल के ऊपर इंटरनेशनल इंक्वायरीज जनरेट हुई और जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि प्रोफाइल पे चली गई। हमने वो इंक्वायरी सेक्शन ओपन किया और हमने उन इंक्वायरीज को, तब उसको 10 इंक्वायरी को हमने कॉल किया सीधे सीधे, कहीं की भी थी आसपास के टाइम फ्रेम देख करके। अब कहीं ऐसा भी होता है, कभी कहीं कहीं 3:30 बजे थे सुबह के, रात के 2 बजे थे, रात के 1 बजे थे, सुबह के 6 बज रहे थे। ओके तो हमने कॉल किया और हमें रिस्पांस जनरेट हुआ वहां से, हमें उन्होंने कंफर्म किया वैलिडेशन में, हमारे हमने रिवैलिडेट किया उन इंक्वायरीज को, वैलिडेशन में कंफर्म हुआ कि हाँ कि वी हैव अ रिक्वायरमेंट, वी हैव रेज अ रिक्वायरमेंट। हाँ लाइक देखिए सर, लेकिन इंस्टेंटली हमने किया। रिस्पॉन्स नहीं है ये बोलना गलत होगा। लाइक मैं एक प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, 6-7 महीने में एक उनको रिस्पॉन्स मिला है, राइट। तो क्लाइंट अगर पे कर रहा है, सपोज 2-3 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 6-7 महीने में एक रिस्पॉन्स अगर उनको मिलता है तो वो एक हमारे लिए ड्रॉबैक्स है। तो उस चीज में एटलीस्ट मंथ में एक रिस्पॉन्स तो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, एग्रीड है, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक प्रोफाइल है, मैं फिर कोई बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पर इस तरीके का मतलब एन नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे और अगर उसके कुछ इंक्वायरीज को वैलिडेट करवाना होगा तो अपने एंड से वैलिडेट करवा लेंगे। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पर इंक्वायरीज को हमें रीवैलिडेट करवाना होगा, आपको प्रोफाइल शेयर कर दीजिएगा, हम रीवैलिडेट करवा लेंगे। ठीक, Sir, आई थिंक हाँ, यस पीरियड hello. या Actually, you said that post the future products in TMT panel. Okay. हाँ हाँ, In how much is it will get reflected in Google, sir? हाउ मच टाइम, How much? Yeah. How much time it will get reflected in Google? टाइम, the time which cannot commit for any condition, ठीक है, in Okay. promotion. So we cannot share you the exact time for the promotion of catalog products or feature product or something. If we are creating for the less increase promotion, okay. You have given certain Uh-huh. solutions that please check the city-wise client evaluation panel like that. Okay. We have cross-checked all things. After that, whether that keywords has been given SEO team from your end, from CRM person, that these keywords are not generating any increase. So kindly work out for the SEO promotion in Google like that. Mhm. Such things are done from backend team. So Or we have any option for updating like that from FLS side. These keywords are not getting reflected in Google, so kind of work like that. If it is there, means it will be easy to us, and you also for you also it's easy. I didn't get your point here, Piraswamy. For example, we are creating less number of inquiries. Sir. Okay, you are telling that add micro categories, add check all the parameters. Okay, after that also there is no improvement in the For increase. any less inquiry condition, we always prefer to go to Google first and then search the company name and find out the reference site. Right, always get a better response from the reference site than our catalog, and we will proceed all the details to our development team to add all the things from reference site to the catalog first, And one more thing, sir, we and need this some will variations. gradually. We need some difference in increase part. For example, if 50,000 paid and 1 lakh above paid, there should be some different part in increase. So that only it upgrade. Of course, there is a difference between 1 lakh 50,000 and 50,000 profile. In some cases, no variations, sir. And one more thing, we are taking IL, CL,
product showcase. Okay. So as I said earlier, just share me the profile. Just share me the profile of 50,000 and 1,50,000. We'll get this second. We'll share you the variations of these two profiles. Yes, Which two will weeks, you sir. share We'll with share us? it in mails. Ah, of course. Yes. Thank you. Thank you. I guess we have covered all the pointers. So, does anybody have more questions today? Charan, I think सर we are. सर आप Yeah, वो yeah. मेरे को दिखाने वाले थे कि दो वो इंटरनेशनल प्रोफाइल्स में लीड्स का एक बार दिखा देना यार जगप्रीत प्लीज. एक बार क्या कंपैरिजन देखना, मुझे एक बार आइडिया दो थोड़ा सा. वो इंटरनेशनल इंक्वायरीज पे जो हम कैटेगरीज पे जाकर के वो देखते हैं ना, जब हम कंपैरिजन करते हैं पर्टिकुलर इंक्वायरी सेटिंग्स मान में लीजिए सर कि किसी प्रोफाइल ने डोमेस्टिक से 80,000 डोमेस्टिक दिया करना है है, ऑल और करना किसी है. को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फॉर 2 lakhs और मतलब 1.5 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर वाला पैकेजेस में, तो वो देखना चाहता है कि इंक्वायरीज इंटरनेशनल इंक्वायरीज में क्या डिफरेंस आ सकता है. जैसे कि हम लोग कोई इंक्वायरी कमिटमेंट नहीं कर सकते, तो वो कैसे हम लोग क्लाइंट को मतलब दिखा सकते हैं. One second. One second. जगप्रीत लैपटॉप 1 मिनट ऑफ हो गया, 1 मिनट आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ. अभी मैं आईडी लेके आता हूँ. टैग तो दिया है ना आपको मैंने. कोई प्रोफाइल आईडी बताइए आप. स्वामी को एक प्रोफाइल आईडी बताइए जो जिसका भी कंपैरिजन आपको करना है. हेलो 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 हेलो. हेलो, ये आवाज आ रही है मेरी? स्वामी, कैन यू हियर अस? या हेलो. या कोई प्रोफाइल आईडी एक बार बता दो, इंटरनेशनल सीटर हो रहा हो आपका. एक सेकंड सर मैं बताती हूँ आपको. So please note the profile ID 288 288 6636 6636. 6636. Yeah. ये है ना. ये क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं राज शेखर बात कर रहा हूँ, वेरी कस्टमर केयर डिपार्टमेंट. हम इसकी बात कर रहे हैं ना. हेलो, जी सर प्रोफाइल है बाल्टेक इंजीनियरिंग. हाँ इसकी बात कर रहे हैं ना. इंक्वायरी सेटिंग्स, इंक्वायरी ओरिजिन ऑल है. तो मैंने बताया था कि अच्छा, मोबाइल में आपको कोई इंटरनेशनल प्रोफाइल आपको देनी थी जो सेम कैटेगरी में डील करती है. जी. अब यहाँ पर आता है आपका सेम ओरिजिन से, फिर मैं इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल कर सकता हूँ, या मैं इसकी इंक्वायरी सेटिंग्स थोड़ी देर के लिए मैं चेंज कर दूं यहाँ से, और फिर मैं इंटरनेशनल कर दूं तो इंटरनेशनल के ही सारे क्लाइंट्स आएंगे. अभी कौन से नंबर पे लॉगिन है सर? ओके. मोबाइल पे लॉगिन है. जी. तो वो कहाँ से मतलब हम लोग बेसिकली कर सकते हैं?
यहीं पर स्वामी यहीं पर ही आप देखोगे ना कि जो इंक्वायरी ओरिजिन आ रहा है वो ऑल है। डीडीसी से एक बार हाँ। इंक्वायरी ओरिजिन, हाँ ये तो ये ऑल है ये इंक्वायरी ओरिजिन। बट अगर यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल आ रहा होता और अगर हम नीचे आके कंपैरिजन ऑफ सेम ओरिजिन करते तो जो प्रोफाइल्स हमें विजिबल होती हैं वो सेम ओरिजिन की होती है, मतलब वो भी सिर्फ इंटरनेशनल की होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिव्यू कर सकते हैं एक बारी। ओके सर, ये जो इंक्वायरी और ओरिजिन आपका ऑल है, ये हम लोग कहाँ से चेंज कर सकते हैं? इसके लिए क्या मतलब सीआरएम को कनेक्ट करना पड़ेगा? आप रेज कर सकते हैं सर सीआरएम को। आपके पास ये एमटीआई पैनल होता है? हाँ, एमटीआई पैनल है यहाँ पर? जैसे ही मैंने ये एमटीआई पैनल पे क्लिक करा, तो क्लाइंट स्वामी आपके पास पैनल ना? एमटीआई पैनल का एक्सेस होता है? एमटीआई पैनल का एक्सेस हाँ। यहाँ पे जो आपको डिफॉल्ट यूजर पे दिख रहा है, हाँ, डिफॉल्ट यूजर किसी भी ये- प्रोफाइल ये- के ऊपर ये डिफॉल्ट जो यूजर के मैं- ऊपर एक एमटीआई पैनल होता है, ये सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए उसको ठीक है। एक बार माउस से सिलेक्ट करो उसको। हाँ ये सिलेक्ट हाँ, करा, देखा आपने ये होता है एमटीआई सर। पैनल, ये एक्सेस है आपके हाँ, पास? हाँ। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा एक बारी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंक्वायरी सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है आपके पास, इंक्वायरी सेटिंग्स के आप ऑप्शन पे जाइएगा एक बारी। सर हमारे पास सिर्फ सर्विस पैनल और क्लाइंट इवैल्यूएशन पैनल का यही मैं एक्सेस पूछना रहता चाह है। रहा था क्योंकि आपके पास एमटीआई नहीं हाँ, होता, एमटीआई मुझे पैनल पता का है। एक्सेस हमारे So, पास नहीं you रहता है। guys वो can raise the SR, आप लोग SR रेज कर Okay. सकते हैं इंक्वायरी ओरिजिन चेंज करने के लिए, बट ये व्यू आपको होता है, आपको दिखता है वहाँ पे इंक्वायरी से रिलेटेड 3 ओरिजिन होते हैं वहाँ पे, आपको दिखते हैं। इंक्वायरी ओरिजिन में आता है कि डोमेस्टिक चाहिए, ओनली फॉरेन चाहिए या ऑल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेटेड अनमॉडरेटेड होता है, इस तरीके से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अगर इंक्वायरी का ओरिजिन चेंज करना सर है ये तो सीआरएम पर्सन विल हेल्प यू ऑन दैट, राइट? ठीक है So सर, apart ठीक from है। that, I guess हमने जो भी डिस्कशन करा that was valuable, but other than that प्रोफाइल स्पेसिफिक डिस्कशन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, यू कैन रीच आउट टू द लीडर और द कंसर्न सीआरएम पर्सन, ठीक है, एंड यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग, राइट? So Charan, I think we are done with the meeting for today and session for today. Charan, are we audible? अगर किसी को कोई कंसर्न है ना तो वो 1-1 कॉन्वर्सेशन आप लोग कर लीजिएगा ना, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। स्वामी आप प्रोफाइल शेयर कर दीजिएगा जिस पे आपको डिस्कशन करना होगा। दिनेश अभी आपसे कनेक्ट करते हैं।